When God created this universe, जब परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड को बनाया, He had a picture in mind. उसके मन में एक तस्वीर थी. He didn't just start speaking. उसने ऐसे ही बोलना शुरू नहीं किया. He had a picture in mind. उसके मन में एक तस्वीर थी. When you see this world, you see an intelligent design. जब आप इस दुनिया को देखते हैं तो आप एक बुद्धिमानी से रचना की गई दुनिया देखते हैं. It is not something that came out or spontaneously. It is a well thought design, and that is the way God created this universe. ऐसा नहीं कि गलती से जो कुछ बनाया गया वो बन गया, लेकिन परमेश्वर ने अच्छी तरह सोच समझ कर बनाया जो बनाया. So it's not like that when God spoke the universe, He wanted the planets to be square, but they became round. तो ऐसा नहीं था. जब परमेश्वर ने ब्रह्मांड को देखा तो वो चाहता था कि जो प्लैनेट्स हैं वो स्क्वायर आकार में, डब्बे के आकार में हो, लेकिन वो गलती से गोल बन गए. The planets are spherical because that's the way God designed it. और जितने प्लैनेट्स हैं वो गोलाकार में इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने उसको वैसा बनाया. When you see the water, the mountains, the way He created galaxies is exactly the way He designed it. जब आप पानी, पहाड़ और गैलेक्सीज को देखते हैं तो वो वैसा ही है जैसा उसने तस्वीर देखी अपने मन में. And when He had that picture in mind, He used His faith and spoke it, and that came into being. और जब परमेश्वर के मन में वो तस्वीर बन गई, उसने अपने विश्वास का इस्तेमाल किया और बोल दिया, और जब बोला तो ब्रह्मांड वैसा बन गया जैसा उसके मन में था. The problem so many Christians are suffering is not because Satan is strong, it's because their picture is wrong. जो कारण है कि बहुत से मसीह अपनी जिंदगी में समस्याओं में है, वो इसलिए नहीं कि शैतान बलशाली है, लेकिन इसलिए क्योंकि मसीह लोगों के मन में जो तस्वीर है वो खराब है. Because from pulpit a wrong picture has been preached so long, and they have heard it and they have believed it, and according to their picture they speak, and because the picture is wrong, the creation is wrong. क्योंकि पुलपिट से बहुत लंबे समय से एक गलत तस्वीर के बारे में प्रचार किया गया है, और क्योंकि प्रचार करने के कारण जो तस्वीर बनी है वो बुरी है, तो जीवन पे जो उसका परिणाम है वो बुरा है. Amen. And the renewal of mind simply means we are going and we are changing the picture that the world or the Satan or the religion gave us, and we are recreating that picture, and we are receiving the picture that comes from the word of God. और मनों को नया करना और कुछ नहीं, लेकिन वो तस्वीर जो शैतान ने या फिर गलत शिक्षाओं ने दिया या दुनिया ने दिया, उस तस्वीर को हटा करके एक सही तस्वीर लगाना जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक बनी है. Amen. Come on, turn to your neighbor and say, neighbor, God is about to change your picture. पड़ोसी, परमेश्वर आपकी तस्वीर बदलने वाला है. Amen. And let me tell you, it's going to be a glorious picture. और मैं बता दूं कि वो महिमा से भरी हुई तस्वीर होने वाली है. Amen. God will never give you a bad picture. परमेश्वर कभी भी आपको एक बुरी तस्वीर, बुरी छवि नहीं देगा. Amen. So if you want to change your life, अगर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, it will not happen by going to men and women of God and them laying their hands on your head. तो ये परमेश्वर के लोगों के पास जाकर के उनके हाथ अपने सर पे रखवा करके नहीं होगा. I am not against that. There is a place for that in the kingdom. मैं उसके विरोध में नहीं हूँ. राज्य में एक जगह है उसकी अपनी. But if you don't take responsibility and accountability of your life and expect that you will go from revival meetings to conferences and it will change your life, you know how has that been working out for you? लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, अपने निर्णयों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे और एक सभा से दूसरी सभा जाते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा. आज तक जिंदगी कैसी रही है, ऐसा करने के कारण वो देख लो. Amen. Come on, say this after me. It's time to change the picture in my heart. मेरे साथ बोलो, ये समय है अपने दिल की तस्वीर बदल दूं. Amen. And that's what I want to teach you today. और यही मैं आज सिखाना चाहता हूँ. And I can give you guarantee. और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ. Those areas where you have never seen breakthrough, you will see breakthrough if you change the picture. आपके जीवन के वो क्षेत्र जहां पर आपने आज तक छुटकारा नहीं देखा, आप उस क्षेत्र में छुटकारा देखेंगे. Amen. Come on guys, I want you to show me some love when I preach. मैं चाहता हूँ थोड़ा प्यार दे जब मैं प्रचार करने को. I would know that you are alive. मैं जानना चाहता हूँ कि आप जिंदा हैं. Amen. So for example, you go to a restaurant and a waiter comes and waiter stands. Yes sir, what do you want? उदाहरण के लिए आप खाना खाने किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ जाके वेटर आता है, सर क्या चाहिए? There is an entire menu and you can choose whatever you want. और एक पूरा मेन्यू है, आप उसमें देख सकते हैं आपको क्या चाहिए. But if you will not speak it, he's not bringing it for you. लेकिन अगर आप मेन्यू में से क्या चाहिए नहीं बोलेंगे तो वेटर लेके कुछ नहीं आएगा. Maybe you have decided it in your heart. हो सकता है अपने दिल में आपने निर्णय लिया हो कि मुझे ये खाना है. But if you will not speak it out, लेकिन अगर बोलोगे नहीं,
The waiter, it's simple, it's simply a person whom the restaurant has assigned to minister to you. वेटर साधारण रूप से देखा जाए तो एक व्यक्ति है जो रेस्टोरेंट ने नियुक्त किया है कि आपकी सेवा टहल करे जवाब So that you won't have to go and bring the food for yourself. ताकि आपको खुद जाके किचन से खाना ना लाना पड़े. In the same way, Bible says in Hebrews that angels are the ministering spirits given to the heirs of salvation. वैसे ही बाइबल कहती है स्वर्गदूत वो सेवा टहल करने के लिए आत्माएं हैं जो प्रभु ने भेजी हैं, प्रभु ने दी हैं वो स्वर्गदूत विश्वासियों के लिए. The Bible says they are sent to us to minister to us. बाइबल कहती है वो हमारे पास इसलिए भेजे गए ताकि वो हमारी सेवा टहल करें. Excuse me? Are you getting what I'm saying? सुन रहे हैं? If I can say it this way, they are spiritual waiters. अगर मैं ऐसे कहूं तो वो आत्मिक वेटर्स हैं. Spiritual waiters waiting for you to speak the word of God, because the Bible says angels hearken unto the word of God. और अगर ऐसा कहूं तो वो आत्मिक वेटर्स हैं जो इंतजार कर रहे हैं आपके मुंह से वचन के निकलने का, क्योंकि बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत इंतजार करते हैं परमेश्वर के वचन को सुनने का. They are waiting for you to speak the right thing so that they can be activated. वो इंतजार कर रहे हैं आपके मुंह से सही बात निकलने का ताकि वो काम पे लग जाएं. But the problem, isn't it so amazing that it's so easy to speak negative than to speak the right thing? क्या ये हैरानी की बात नहीं कि बुरा बोलना या नकारात्मक बोलना इतना आसान है अच्छा बोलना या सकारात्मक बोलने से? Why? क्यों? Because you're surrounded by negative people. क्योंकि आप नकारात्मक लोगों से घिरे रहते हो. You go to your office ऑफिस जाओ and maybe there's a guy sitting next to you, बगल में कोई बैठा होगा, all the time complains about how bad his job is. सारा टाइम बताता है कितनी बुरी है उसकी नौकरी, And maybe you love your job. और शायद आपको नौकरी पसंद And हो, all the time he cribs about how bad his boss is. लेकिन वो सारा समय रोते रहता है कि बॉस कितना बुरा And है. maybe you don't have a problem with your boss, और आपको शायद बॉस से दिक्कत but ना हो, because you hear him so much, लेकिन क्योंकि आप हर समय उसकी बातें सुनते हो you will become negative आप भी नकारात्मक हो जाओगे. and the words will start coming out from your mouth. और वही बातें आपके मुंह से निकलने लगेंगी. Are you getting what I'm saying? I want to teach you a principle today. Okay? इसलिए मैं एक सिद्धांत सिखाना चाहता हूँ आपको. Proverbs chapter 18 verses 21. नीति वचन 8 18, 21. 18 उसका 21. If you're there, say amen. Are you there? पहुंच गए? Can you give me a nice amen? All right, awesome. Death and life are in the power of the tongue. मौत और जिंदगी जीभ की सामर्थ्य में है. Death and life are in the power of tongue. मृत्यु और जीवन जीभ की सामर्थ्य में है. God never said that death and life are in the power of my tongue. He says death and life are in the power of tongue. परमेश्वर ने ये कभी नहीं कहा कि मृत्यु और जीवन मेरी जुबान की सामर्थ्य में है. उसने कहा मृत्यु और जीवन जुबान की सामर्थ्य में है. And those who love it will eat its fruit. और जिनको इससे प्यार होगा वो उसका फल खाएंगे. If you're continuously speaking death, अगर आप हर समय मौत बोलते हो hallelujah, guess what you are getting? तो क्या मिलेगा? Don't blame God, don't blame your neighbors, don't blame your dad. It's the words that you have spoken. परमेश्वर को दोष ना दे, अपने माँ बाप को दोष ना दे, अपने पड़ोसियों को दोष ना दे, लेकिन वो वचन जो आपने मुंह से बोले हैं वो हैं. What are the words that you are continuously speaking? क्या है वो बातें जो आप हर समय बोलते हो? Because whatever you are speaking, and I'm not saying a one-time event. क्योंकि जो कुछ आप बोल रहे हो, और मैं एक बार गलती से बोल दिया वाली घटना नहीं कह रहा हूँ. I'm talking about the things that you have constantly said about yourself over the years. लेकिन मैं उन बातों के बारे में बात कर रहा हूँ जो आप हमेशा से इतने सालों दर साल अपने ऊपर बोलते आए हैं. You know what? Nobody loves me. पता है कोई मुझसे प्यार नहीं करता. Nobody loves me. किसी को मुझसे प्यार नहीं. Nobody loves कोई me. मुझसे प्यार नहीं करता. Nobody कोई loves मुझसे प्यार नहीं me. करता. Nobody loves कोई me. मुझसे प्यार नहीं Nobody करता. loves कोई me. मुझसे प्यार नहीं करता. Nobody कोई loves मुझसे me. प्यार नहीं And करता. people try to go and love you, but there is this repulsion that comes from you because you have spoken it so many times that it becomes impossible to love you. और लोग आपके पास आते हैं आपसे प्यार करने के लिए, लेकिन एक ऐसी दूरी वो महसूस करते हैं आपके निकट आते हो कि अपने आप वो दूर हो जाते हैं. It's very powerful what you confess. बहुत सामर्थ्य है आप क्या बोलते हो. The word confession, अंगीकार शब्द जो whenever है, we hear confession, we think it, oh, confession of sins. जब हमें अंगीकार शब्द सुनाई देता है हमें लगता है अरे पापों का अंगीकार की बात हो. That's not what confession means. लेकिन अंगीकार का मतलब Confession नहीं. comes from the Greek word homologio or homologio, whatever you will say. और कन्फेशन अंगीकार शब्द आता है यूनानी के शब्द होमोलोगियो से. It means to agree or to say the same thing. इसका मतलब है हामी भरना या वही बात कहना. Repeating the same thing.
वही बात को दोहराना। Many times, without knowing, all the elders are excellent at it. कई बार ना जानते हुए बहुत जो वृद्ध लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं इन बातों में। You know, you'll come home, maybe your mom, maybe some auntie, your bua, you'll say, "Oh, आ गया मैं ऑफिस से." अच्छा बेटा आ गया ऑफिस से? No, they'll repeat whatever you'll say. So आप घर आते तो वो दोहराएंगे आप जो कहेंगे उनसे वही। That's what confession means. अंगीकार का ये मतलब है। That means when God says, "With long life I'll satisfy you," you say, "With long life He'll satisfy me." इसका मतलब जब परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा, आप बोले हाँ मैं दीर्घ आयु से तृप्त When होऊंगा। God says, "No weapon formed against you shall prosper," you say, "No weapon formed against me shall prosper." जब परमेश्वर कहता है तेरे विरोध में बनाया गया कोई हथियार सफल नहीं होगा, आप कहे मेरे विरोध में बना कोई हथियार सफल नहीं होगा। When God says you are blessed when you enter your house, you are blessed when you come out of your house, you say, "I am blessed when I enter my house, I am blessed when I come out from my house." जब परमेश्वर कहता है कि तू आशीषित होगा अपने घर में प्रवेश करते समय और तू आशीषित होगा घर से निकलते समय, आप भी कहे कि मैं आशीषित हूँ अपने घर में आते हुए और मैं आशीषित हूँ घर से निकलते हुए। When God says you are blessed in the city and you are blessed in the country, you say, "I am blessed in the city, I am blessed in the country." That's godly confession. जब परमेश्वर कहता है कि तू गांव में जाए या शहर में जाए तू आशीषित होगा, आप कहे मैं अगर गांव में रहूं तो मैं आशीषित हूं, अगर मैं शहर में रहूं तो मैं आशीषित हूं। Amen? Now let me show you something and I want you to pay very attention. It's powerful. अब मैं कुछ दिखाना चाहता हूं और ध्यान दें क्योंकि ये बहुत सामर्थ्य है। Hallelujah. Proverbs chapter 6 verses 2. नीति वचन 6 उसका 2। Proverbs chapter 6 verses 2. Come on, shake your neighbor, shake your neighbor. अपने पड़ोसी को हिलाए जरा, Shake your neighbor. They need to hear this. उनको सुनना जरूरी है ये बात। You are snared by the words of your mouth. तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसता है। Oh, hallelujah. Not because of Satan, शैतान की वजह से नहीं, but because of your fat big mouth. लेकिन अपने बड़े मुंह के कारण। You know? Some people have a big mouth. कुछ लोगों का मुंह बहुत बड़ा होता है And for them to walk into miracles, they would need a big lock from God. और वो लोग चमत्कार की जिंदगी जी पाए उसके लिए उनके मुंह पे परमेश्वर को बहुत बड़ा ताला लगाना पड़ेगा पहले। For John the Baptist to be born, angel has to shut the mouth of Zacharias. Many people abort their miracles because of their mouth. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पैदा होने के लिए स्वर्गदूत को जकरिया के मुंह पे ताला मारना पड़ा। बहुत बार परमेश्वर चमत्कार लोग हासिल करें उसके लिए ताला लगना जरूरी है लोगों के मुंह If पे। you cannot speak good, don't speak for God's sake until you get your miracle. अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो बोलो ही मत जब तक चमत्कार ना मिल जाए। Telling you the truth. मैं सच कह रहा हूँ, Many people have lost their miracle because of their mouth. बहुत से लोगों ने अपना चमत्कार इसलिए गवा दिया क्योंकि वो क्या बोलते थे उसके कारण। अरे कुछ नहीं होता, ऐसे ही कहते हैं, "Oh, it was about to come." The angel will go back. और जब उनका चमत्कार आने ही वाला था उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, बकवास है सब कुछ, और चला गया। There is a lady, she came to church, एक औरत कलीसिया आई and most of the people who are in Moti Nagar church, you know it. People brought 4 guys, carried her in a chair. और जो लोग मोती नगर में थे वो लोग जानते हैं, 4 लड़के उनको कुर्सी पे बैठा के उठा के लाए थे सीढ़ियों से। And we prayed for her. और हमने उनके लिए प्रार्थना की। And I said, "Auntie, say thank you, Jesus." मैंने बोला आंटी आप कहो धन्यवाद यीशु। She said, "मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं कहूँ धन्यवाद यीशु." Wow. तो उन्होंने इतना बड़ा सेंटेंस बोला, धन्यवाद यीशु नहीं बोला। धन्यवाद यीशु। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं बोलूं धन्यवाद यीशु। And she was so angry at us. और वो इतना गुस्सा थी हम पे। And she got up, said, "यहाँ पे कुछ होता नहीं है." And she got up and she walked out, not realizing she got healed. और वो कुर्सी से उठी और खुद चल करके चली गई, उनको ये समझ में नहीं आया कि वो चंगी हो गई हैं। If you want to see a life of victory, अगर आप जय की जिंदगी जीना चाहते हो and you know your mouth needs training, और पता you है- have to put bridle on your mouth. और पता है कि अपने शब्दों को भी प्रशिक्षण की जरूरत है, तो अपने मुंह को बंद करना सीखो। How many people here want to live long? कितने लोग लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं? Are you sure? पक्का? Some people don't want to live long. Okay, Lord.
I don't want to do that. Because I'm claiming nobody will die young. If I take your life, that would not be good. Okay. So how many people here want to live long? कितने लोग लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं? It's God who has designed that. परमेश्वर ने बनाया है If you don't want to live long, then that means you're not enjoying life. You're not enjoying life, then you're not walking with Jesus. Because the joy of the Lord is my strength. अगर आप लंबा जीना नहीं चाहते तो मतलब है आप जीवन का आनंद नहीं ले रहे, और जीवन का आनंद नहीं ले रहे तो कुछ दिक्कत है यीशु के साथ चलने में, क्योंकि उसके साथ चलना आनंद है, आनंद हमारा बल है. One pastor told me, I said, मजा आ गया. And there was this pastor. I was not pastor at that time. I was like, meeting में मजा आ गया. I was like, मजा? मजा आ गया तुम्हें? आनंद बोलो, आनंद, आनंद आ गया, आनंद. You know, this is called spiritual nonsense. इसको आत्मिक बकवास कहते हैं. So, भैया आया मजा, आता है मजा, तो आता है मजा, क्या करें प्रभु के राज्य में? Amen? We don't know about others. भाई हमें तो बहुत मजा आता है प्रभु में. दूसरों का नहीं पता भाई. Amen? Amen. They have not read Timothy. In that God, Paul says that God gives us freely all things to enjoy. What? और तिमोथी में लिखा है परमेश्वर सारी बातें हमें आजादी से देता है ताकि हम उसका मजा ले सकें. अच्छा, मतलब enjoy करोगे तुम अब, हैं? Enjoy करोगे तुम? भैया हम तो enjoy करेंगे. Come on, turn to your neighbor and say, भैया हम तो enjoy करेंगे. अपने पड़ोसी को कहे भैया हम तो एंजॉय करेंगे. Amen? So I was saying, if you want to live long, मैं कह रहा था अगर आप लंबा जीना चाहते हो, see who are the people who are in close circle with you. तो देख लो वो लोग कौन हैं जो आपके करीबी हैं, आपके दिल के पास हैं, जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं. Because if those people walk in dishonor, क्योंकि अगर वो लोग निरादर करके जीते हैं दूसरों का, soon that dishonor will enter your heart वो निरादर जल्दी आपके दिल में उतर आएगा and come out from your mouth. और आपके मुंह से निकलेगा. And the Bible clearly teaches dishonor will cut a life. और बाइबल सीधा सीधा सिखाती है निरादर का जीवन आपकी जिंदगी को छोटा कर And देगा, honor will extend the life. आदर आपकी जिंदगी को लंबा कर देगा. Honor your mother and father. Honor people who are in authority. Honor your bosses, because honor is so powerful. अपने माता पिता का आदर करें, अपने बड़ों का, अपने अगुओं का आदर करें, जो दफ्तर में आपके अधिकारी हैं उनका आदर करें, जो देश के अधिकारी हैं उनका आदर करें. Okay, so Proverbs 6:2, you are snared by the words of your mouth. नीति वचन 6 उसका 2, तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसता है. A snare means a trap. ये जो फंसने की बात कर रहा है वो फंदे की बात कर रहा है. It's a trap that was set to catch animals. वो फंदा वो होता है जो जानवरों को पकड़ने के लिए, कैदी बनाने के लिए लगाया जाता है. So if a snare is a trap, we can read this scripture as you are trapped by the words of your mouth. तो अगर स्नेयर जो है वो फंदे की बात करता है तो मैं इसको ऐसे पढ़ सकता हूँ, तेरे मुंह के वचन तेरे लिए फंदा बनते हैं. And I speak bad, then I get trapped and I give all the glory to God. अगर मैं बुरा बोलता हूँ तो मैं फंदे में फंसता हूँ और उसकी सारी गलती किस पे डालता हूँ? परमेश्वर पे डालता हूँ. No. नहीं. Okay. You are taken by the words of your mouth. तू अपने मुंह के वचनों के कारण बंधी बनता है. You are taken captive. You are made captive by the words of your mouth. तू अपने मुंह के वचनों के कारण बंधी बनाया जाता है. Amen. Church, are you getting what I'm saying? Bible is not saying you are taken captive or you are snared by your thoughts. Bible is saying you are snared and taken captive by your words. बाइबल ये नहीं कह रही कि तू अपने मुंह के, अपने मन के विचारों से, लेकिन वो कह रही है अपने मुंह के वचनों से पकड़ा जाता है, बंदी बनता है. Each one of us, Satan will bombard wrong thoughts into our mind. हम में से हर एक के मन में शैतान बहुत से बुरे विचार देता है. Even Jesus wasn't immune from that. यहाँ तक कि यीशु भी इस बात से नहीं बचा. Bible says he was tempted with every temptation known to man. बाइबल कहती है जो कोई परीक्षा मनुष्य को पता है वो सारी परीक्षा यीशु गुजर चुका. And temptation comes in the form of thoughts. और वो परीक्षा विचारों के रूप में आती है. But if you don't speak that bad thought out loud, an unspoken thought dies unborn.
अगर आप उस वचन को अपने मुंह से नहीं बोलोगे तो वो जो बुरा विचार है अगर बोला ना गया तो ऐसे ही मर जाएगा। I hope you're getting what I'm saying. मैं उम्मीद करता हूँ आप जान रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। Any unspoken wrong thought dies unborn. कोई भी बुरा विचार जो मुंह से नहीं बोला गया वो ऐसे ही मर जाता है। That's why Jesus said, इसीलिए यीशु ने कहा don't worry by saying, what shall we eat, what shall we drink, what shall we wear. ये कहते हुए चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या कहाँ रहेंगे, Because thoughts are going to come. क्योंकि ऐसे विचार आएंगे। As long as you live on this earth, जब तक दुनिया में हो Satan will try to snare you with your words. शैतान आपके मुंह के वचनों के द्वारा आपको फंसाना चाहेगा। Let me tell you this, church. मैं बता दूं ये Satan is the powerless fellow. शैतान सामर्थ्यहीन बलहीन है। I've been saying this for years. If he was so powerful, he would have killed me by now. मैं सालों से इस बात को कहता आ रहा हूँ, अगर उसमें थोड़ा सा भी सामर्थ्य होता मुझे मार दिया होता। I would be sleeping at night, he would have come. You are. मैं रात को सो रहा था आके गला दबा देता। No. नहीं कर सकता। Satan, God has not made Satan in his image. He is not a creator. परमेश्वर ने शैतान को अपने स्वरूप में नहीं बनाया। God did not give him life and death in his tongue. Otherwise, you know what would have happened? He would have killed all the believers by now. परमेश्वर ने शैतान के मुंह में जीवन और मृत्यु नहीं दिया, नहीं तो अब तक वो सबको मार चुका होता। So what he does is, तो वो क्या करता है? he kills you वो आपको मारना चाहता है with your own words. आपके खुद के मुंह के वचनों से। And for him to kill you with your own words, he has to put wrong thoughts in your mind. और आपके मुंह के वचनों से आपको मारने के लिए उसको आपके दिमाग में फालतू के विचार डालने पड़ेंगे। Church, I hope you're getting what I'm saying. उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हो। If you apply this principle, अगर आप इस सिद्धांत को काम में man, ले you आओ, will start walking in victory. तो आप जय में जियोगे। So that means इसका मतलब when Satan gives you a thought, जब शैतान आपको बुरे विचार देता because है, he wants you to speak it out loud, क्योंकि वो चाहता है कि आप इन विचारों को मुंह से बोलो, so he would say, तो वो कहेगा you're going to die young. कि तू जवानी में मरेगा। You start saying, आप कहना शुरू करो, it is written, लिखा है my God shall satisfy me with a long and healthy life. कि मेरा परमेश्वर मुझे लंबी आयु से तृप्त करेगा। He says, you will never have enough. वो कहता है तेरे पास कभी भी बहुत आयत नहीं होगी। You say, आप कहें my God has anointed me with fresh anointing and my cup runs over. कि मेरे परमेश्वर ने मुझे ताजे अभिषेक से अभिषिक्त किया है, मेरा प्याला उमड़ता रहता I है, am blessed. मैं आशीषित हूँ। Because he gave the same temptations to Jesus. क्योंकि उसने वही विचार यीशु को दिए। He said, if you are the son of God, then command this. उसने कहा अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो आदेश दे। No, Jesus spoke opposite to what he said. लेकिन यीशु ने जो बोला वो उसके विचारों के विपरीत था। Guys, is this making sense to you? So Satan cannot catch you, and Satan has no hook over you unless you give him, you become vocal about the thoughts that he gives you. शैतान तब तक आपको फंसा नहीं सकता, आपको बंधी बना नहीं सकता जब तक आप वो गलत विचारों को मुंह से ना बोलो। For example, you ate some peanuts उदाहरण के लिए आपने मूंगफली खाई and you had a stomach ache. और पेट में दर्द हो रहा है, मान लीजिए, Satan comes, वो आएगा, says, you are allergic to peanuts. बोलेगा मूंगफली से एलर्जी है तुझे। And then you keep saying, oh, are there peanuts in this? I am allergic to peanuts. I am allergic to peanuts. I am allergic. And maybe in 5 years, you have said it 10,000 times that you're allergic to peanuts. And guess what? Every time now you eat peanut, you become a peanut. सो मान लीजिए आपने मूंगफली खाई और बाद में पेट दर्द हो रहा था, शैतान ने आके बोला कि मूंगफली खाने से तेरे को पेट दर्द होता है, तो अगली बार जब कुछ खाने के लिए सामने आए जिसमें मूंगफली है तो आप बोलोगे मैं ये नहीं खाऊंगा, मुझे मूंगफली खा के पेट दर्द होता है। और 5 साल में आपने इस बात को इतनी बार बोल दिया कि जब भी मूंगफली सामने आएगी पेट वैसे ही दर्द हो जाएगा। I was so allergic to boiled eggs. I mean, like, I'll eat boiled egg, I'll have terrible stomach ache. मुझे उबले हुए अंडों से बहुत पेट दर्द होता था। And I could not swim. और If I'll go swimming, my ears will pain. और मैं तैर भी नहीं सकता था क्योंकि तैरने से मेरे कानों में दर्द होता When I था। came to the Lord, जब मैं प्रभु के पास I आया started speaking. मैंने बोलना शुरू किया, Lord, प्रभु I want to enjoy eggs. मैं अंडों को खाना Because चाहता your हूं word मजे से। says everything should be received with thanksgiving. क्योंकि आपका वचन कहता है सब कुछ धन्यवाद देके ग्रहण By करो। faith, विश्वास से I ate eggs मैंने अंडे खाए and I have been eating eggs और तब से खा and रहा I will eat eggs as long as I want to eat हूं और eggs खाता रहूंगा जब तक खाना चाहता and हूँ there is no problem. और कोई दिक्कत नहीं है। How did Satan snare me? शैतान ने By मुझे my कैसे फंसाया? words. मेरे मुंह के वचनों से। Guys, is this making sense? समझ में आ रहा है? And in the same way I went to swimming pool. वैसे ही मैं स्विमिंग पूल में गया, I said, I am going to swim मैंने कहा मैं स्विमिंग करूंगा because
I am a child of God and Father has made all these things for me. क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, उसने ये सारी बातें मेरे जीवन के लिए बनाई हैं। And I did duk, duk, duk. मैं पानी में कूद गया, स्विमिंग किया, No air pain. कान में दर्द Now I नहीं, can be in the swimming pool for hours. अब घंटों तक मैं पानी में रह सकता हूँ, No pain. कोई दर्द नहीं। Satan snares you, Satan traps you by giving you wrong thoughts. That wrong thoughts create wrong picture. You speak it out because he knows you are made in the image of God. शैतान आपको गलत विचार देता है, वो गलत विचार आपके दिमाग में एक गलत तस्वीर बनाते हैं, एक गलत कल्पना दिखाते हैं आपको, और जैसे ही आप बोलते हैं अपने मुंह से, शैतान जानता है कि आप परमेश्वर की छवि में बने हैं। You know? And I'm not talking about saying one time you said it. No, I'm talking about, have you met some people? They have a problem for every solution. और मैं ये नहीं कह रहा कि आपने एक बार ही बोला तो होगा, लेकिन मैं उन बातों की बात कर रहा हूँ जो आप बार बार बोलते रहते हैं। क्या आप ऐसे लोगों से मिले जिनको हर एक बात में कोई ना कोई समस्या होती है? I mean, like, if they were planted in the Garden of Eden, they would have found fault in Eden as well. अगर उनको अदन की वाटिका में रखा जाता तो उनको वहां भी दिक्कत होती। They are always negative. उनको हमेशा हर बात में दिक्कत होती They है, are all the time speaking negative. वो हर समय नकारात्मक बोलते हैं। And show me one, if you say, I don't believe it, if it works or not. Okay. Show me one person who is all the time cribbing and complaining and crying about his life. Show me a good fruit out of that one person. One person. I'll repent from pulpit and change and won't preach this. If you find one person who has fruits in their life. और अगर आप कहते हैं कि ये शिक्षा काम नहीं करेगी, तो मुझे एक ऐसा व्यक्ति दिखाइए जो हमेशा कोसते रहते हैं अपने जीवन को, अपने आसपास की चीज़ों को, जो उनके पास है उसको हमेशा बुरा बोलते रहते हैं, तो उनके जीवन में क्या अच्छा फल है मुझे वो दिखाइए, मैं जो सिखा रहा हूँ बंद कर दूंगा। That's why Satan is a master deceiver. We don't even know that he's using our energy, our power, our mouth, our words to destroy us. इसीलिए शैतान इतना बड़ा धोखा देने वाला है, क्योंकि उसको वो जानता है कि वो हमारे शब्दों को इस्तेमाल कर रहा है, हमारी कल्पना को इस्तेमाल कर रहा है, हमारी रचनात्मक शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। I'm telling you, there are times when Satan has given me terrible thoughts and I start laughing. और कई बार शैतान ने मुझे बुरे विचार दिए और मैंने हंसना शुरू कर दिया उस पर। And then he would say, why are you laughing? और फिर बोलता है क्यों हंस रहा है? I said, because you are a loser. मैं कहता हूँ क्योंकि तू हारा हुआ है, And I'm not falling for your tricks anymore. और मैं तेरी इन ट्रिक्स के लिए नहीं गिरूंगा। और Amen? We have to. So, confession, you say what has been said, or you agree. You can agree to what Satan says, or you can agree to what God says. सो अंगीकार और कुछ नहीं, अंगीकार हामी भरना है, जो बात पहले से कह दी गई है उसमें आप हामी भर सकते हैं, जो परमेश्वर आपके लिए कहता है उससे, या फिर आप हामी भर सकते हैं जो शैतान आपसे कहता है उससे। And Satan knows the godly principle that life and death are in your tongue. और शैतान को ये सिद्धांत पता है कि परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु आपकी जुबान में रखी है। And I can tell you how many people know Paul Walker, Fast and Furious guy. कितने लोग पॉल वॉकर को जानते हैं, जो फास्ट एंड फ्यूरियस का हीरो था? Yeah. Every time he used to say, I want to die, I will die in an accident. वो हमेशा ये Watch कहा his करता interviews. था, वो हमेशा ये कहा करता था कि किसी दिन गाड़ी चलाते समय उसकी मौत हो जाएगी। What happened? पता है क्या हुआ? He died in an accident. वो गाड़ी चलाते हुए मर Why? गया। क्यों? Because the Bible is true. क्योंकि बाइबल सच्ची है। Some people say, in his funeral, people say, oh, God took him away. God did not take him away. His mouth took him away. जब उसका अंतिम संस्कार हो रहा था, लोगों ने बोला कि परमेश्वर ने इसको जल्दी उठा लिया। परमेश्वर ने नहीं, उसके मुंह ने उसको उठा लिया। But some people will say, I don't even know what is in my heart. कई लोग बोलेंगे मुझे नहीं पता मेरे दिल में क्या है। Hear what comes out from your mouth. तो फिर सुन लो आपके मुंह से क्या निकलता है। Have you heard this saying? क्या किसी ने सुना है? ये मुंह का खराब है, बस दिल का बहुत अच्छा है. Have you heard that? सुना है? That's nonsense. बकवास बात है। Because the Bible says, Jesus said, out of the abundance of heart, mouth speaks. What comes out from your mouth shows what is in your heart. बाइबल कहती है तुम्हारे दिल की बहुतायत से तुम्हारे मुंह के वचन निकलते हैं, जो दिल में भरा हुआ है वही मुंह से बाहर आएगा। मुंह का कड़वा है, अंदर से बहुत नरम है। नो कड़वा मुंह का इसलिए क्योंकि अंदर भी कड़वा है। Getting it? Guys, out of the abundance of our heart, mouth speaks. हमारे दिल की बहुतायत से हमारा मुंह बोलता है। Some people कुछ लोग have become excellent on prophesying lack for their life. They will tell everyone that they don't have money. कुछ लोग अपने जीवन पे
कमी घटी की भविष्यवाणी करने में इतने अच्छे हैं कि वो हर एक को जाके बताता है कि And मेरी then they जिंदगी say, में कमी है। man, it's been years. Why don't I get financial breakthrough? और फिर कहते हैं यार सालों बीत गए, क्यों मेरी जिंदगी में पैसे की उन्नति नहीं होती? You ask them, और सब बढ़िया? अब बोलेंगे सब ठीक चल रहा है? यार पैसे नहीं है यार। अरे मैंने पूछा पैसे हैं नहीं है। I just asked how are you? They'll start talking about money. मैंने आपसे पूछा थोड़ी पैसे हैं कि नहीं है, मैं तो पूछ रहा हूँ आप कैसे हो? बोलेंगे वो पैसे की बात करते जी, पैसे नहीं मेरे पता पास। नहीं कैसे होगा यार, पता नहीं कैसे होगा। Yeah, are you getting what I'm saying? It's a principle. ये एक सिद्धांत है। जब आपको थॉट आए कैसे होगा, it's not your job to find out कैसे होगा. ये आपकी नौकरी नहीं है ढूंढना कि कैसे कुछ पूरा होगा। It's your job to believe होगा. आपकी नौकरी है विश्वास करना कि होगा, Because God is a faithful God. क्योंकि परमेश्वर विश्वास के लायक है। Amen. So when Satan gives you a thought, तो जब शैतान आपको ये विचार दे, कैसे होगा, तो don't say कैसे होगा. You are confessing what he is saying. क्योंकि अगर आप उसके साथ मिलकर कहते हो कैसे होगा, तो आप हामी भरते हो, उसका अंगीकार करते हो जो उसने कहा है उसमें मिलके। The moment you get that thought, lift up your hand and saying, my God is Jehovah. What? Jireh. Okay. My God is Jehovah Jireh, my provider. और जैसे ही ये विचार आता है कैसे होगा, अपने हाथों को उठाए कहे मेरा परमेश्वर यहोवा यीरे है जो मेरे सब कुछ मुहैया He is कराता a है। faithful God. वो विश्वास योग्य है। Amen.